Okay, and welcome back. So we are now finally into the journey of physics. It's no more maths now, but I have given you a lot of questions of maths to solve. So I hope you're on your toes. So maybe I will just take a feedback of your progress, maybe in a day or two. तो उनको try करो. काफी सारे questions दिया मैंने differentiation integration के. So I hope you are trying them. Good morning messages from Etat, Arav, and so on. Well, we were discussing on dimensions and we have discussed some of the utilities. एक utility हमने discuss ये किया था, and that is to find out the conversion factor. और एक दूसरा किया था, and that is to check or cross verify formulae. और एक तीसरा किया था, and that is to find out or to derive some relevant formula whenever possible. लेकिन साथ में हमने ये भी देखा था कि ये जो derivation वाला चीज है, it's not completely successful in the sense कि derivation में कई बार constants नहीं calculate कर पाते हैं. So there are limitations of each of them. Not that they are fully perfect, but yes, it gives us some idea of some formula derivation in certain cases. ठीक है? तो हमने शायद excuse me, हमने शायद energy of a capacitor किए थे, capacitance of voltage को equate करके, and it turned out to be half CV square. Half तो खैर mathematical आया था या आता है, और CV square was the remaining energy part. ठीक है? चलो. With that as the background, now let's set the ball rolling. Excuse me. तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम लोग कल कर ही रहे थे, and that is, suppose I say that the acceleration is equal to AV square plus CT by D plus S square. ये given. No need to say A is acceleration, B is velocity, T is time, S is displacement. तो तुमको A, B और C के डायमेंशन बताना. ठीक है? Go ahead. It's not a very difficult question. Very simple question. Go ahead. A is acceleration, V is velocity, T is time, S is displacement. So the symbols have their own standard meaning. ठीक है? चलो, go ahead. First of all, acceleration is LT minus 2 और इसको भी acceleration होना पड़ेगा. अब ये तो L square T minus 2 है, यानी A क्या होना पड़ेगा? L minus, यानी A हो जाएगा L minus 1. ठीक है? A will be L minus 1. That is the first. Then you have now S square is L square, तो दोनों ऐड तभी हो सकता है जब दोनों सेम डायमेंशंस हो. यानी B कितना हो गया? फिर B हो गया L square. ठीक है? So this is also L square, this is also L square, so they will match. लेकिन A तो L T to the power minus 2 होना चाहिए. अब ऐसे होना चाहिए कि C into T by L square should be equal to L T to the minus 2. So that's how it has to. यानी C into T, ऊपर T है, नीचे L square है, लेकिन ओवरऑल डायमेंशन इस पूरे का क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी LT minus 2, यानी LT minus 2. तो C का क्या होगा? L cube, और ये एक और माइनस चला जाएगा, तो T minus. I think that's it. तो ये C हो गया. ये सर इसमें B को डायमेंशनलेस भी मान के कर सकते हैं ना, तो फिर भी सेम आंसर आ रहा है. नहीं, अब तुम B को डायमेंशनलेस जबरदस्ती नहीं कर सकते. क्यों? फिर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के खिलाफ हो जाएगा. क्योंकि हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या, कि अगर मान लो दो चीजें सेम डायमेंशंस के होंगे तो ही ऐड हो सकते. अब देखो हमने किसके साथ किसको ऐड किया? हमने B के साथ S स्क्वायर को ऐड, है ना? तो S स्क्वायर इज डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, तो उसके साथ B तभी ऐड हो सकता है जब B खुद भी डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर है. इसलिए B को तो इस बार L स्क्वायर होना पड़ेगा. सो यू कैन नॉट स्टार्ट ऑफ विद B एज डायमेंशनलेस, वो अलाउड ही नहीं है. ठीक है ना? देखो कल वाला क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन, वो अलग चीज. आज वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है. ये बिल्कुल रूटीन है कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे और फिर बाकी सॉल्व. आई होप यू आर गेटिंग द क्लूज. तो A हो गया L minus 1, B हो गया L2, and C is like L cube and T minus 3. And I'm seeing
Most of the answers are coming out correct. Give it Anya, Priyank. These are the answers that I can just see now. ठीक है ना? बाकी सबका आंसर तो दिख नहीं रहा है, but at least the answers that I'm seeing now are all correct. चलो, so that was about your dimensions. अभी deriving formula, checking or verifying formula, but with the limitation that constants etc. cannot be found out. और जहां तक चेकिंग फॉर्मूला इज कंसर्न, उसमें भी एक लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई चीज डायमेंशनली सही हो जाए तो उसके वजह से फॉर्मूला सही नहीं हो जाता है. वो डायमेंशनली सही हो, बट एक्चुअल फॉर्मूला करेक्ट है या गलत है वो हमें ऐसे नहीं पता चलता है. ठीक है ना? सो दैट्स व्हाट द रियलिटी इज. इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनली, मैं एक बार और मेंशन कर देता हूं, डायमेंशनली करेक्ट formula may be correct, but a dimensionally incorrect formula is always incorrect. यानी just because कि एक formula dimensionally सही हो गया उससे वो फॉर्मूला सही नहीं होता है. बट हाँ, अगर मान लो फॉर्मूला का डायमेंशनली गलत है तो फॉर्मूला डेफिनेटली गलत. इट्स लाइक दैट. ठीक है ना? चलो, सो दैट वाज अबाउट द मेथड ऑफ डायमेंशंस. इसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस भी दूंगा मैं बाद में, तो लाइक उसको प्रैक्टिस कर लेना. तो आई थिंक दैट वुड बी more or less good enough as far as dimensions are concerned. Today we'll be talking about or starting the next topic, and that is on errors. Now, what do you mean by error? Error का जो literal meaning है वो तो है गलती, है ना? अब तुम लोग गलती हम क्यों करते हैं ना? देखो, हम लोगों का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जब हम लोग एरर की बात कर रहे हैं, इट इज द एरर्स इन मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन. So in physics, what do you mean by errors? Now, they are the errors in measurements and calculations. कई बार चीजें मेजर करने के चक्कर में एरर हो जाता है और कई बार कैलकुलेशन के चक्कर में एरर हो जाता है. So what we measure, what we are interested in basically either one of them, and that is either in measurement or in calculations. That's what we are interested in. Now, what are the different ways in errors can happen? Number one is human error. Now you might say human error मतलब human beings है, कोई भी measurement करते हुए error तो हो ही सकता है ना? So that is the under human error. दूसरा experimental error. Experimental error मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में एरर आ जाता है. कई बार एक्सपेरिमेंट के करने के चक्कर में एरर आ जाता है. ठीक है ना? सो दैट इज अंडर एक्सपेरिमेंटल एरर. नाउ यू माइट से एक्सपेरिमेंट करते क्यों एरर है? देखो, एक्सपेरिमेंट करते हुए कई वजह से एरर आ सकता है. जैसे सपोज कोई एक्सपेरिमेंट कर और इन द मीनवाइल थोड़ा सा सेटअप जिस पे एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा हीट अप हो जाता है. एक सिचुएशन दे रहा हूं, ऐसे हजारों सिचुएशंस हो सकता है. आई एम जस्ट गिविंग वन सिचुएशन. एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और तुम कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन इन द मीनवाइल समहाउ उस सर्किट में या उस सेटअप में हीटिंग की वजह से क्या हो गया ना, टेम्परेचर बदल गया. अब टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस भी बदलता है, ये तुम लोगों को पता होगा. तो अगर रेजिस्टेंस बदल गया तो यानी मेजरमेंट्स तो अलग हो जाएगा देन व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, है ना? तो यानी वो तो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हुआ. अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते तो वो गर्म नहीं होता, तो फिर इन दैट केस तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, फिर रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होता, एंड सो ऑन. सो आई कैन आर्ग्यू ऑन दोस लाइंस. पॉइंट इज दैट because I am doing that experiment, so that experiment itself added some error, so that is called as experimental error. ठीक है? फिर आता है what is called as zero error. देखो, मैं एक इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहा हूं and that is let's say ammeter. Ammeter का काम क्या है? Now, ammeter is supposed to measure current. So simple. Ammeter is supposed to measure current. कितना सिंपल है. लेकिन करंट बार बार मेजर करते करते नीडल इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आता है. इस तरीके से करते 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 देखना क्या होता है, थोड़ा सा ना एरर आने लगा. मैं बताता हूँ कैसे. देखो, कायदे से क्या होना चाहिए, जब कोई करंट नहीं है
तो इंस्ट्रूमेंट का जो नीडल है वो बिल्कुल 0 पे सेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बार बार ऐसे 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 करते 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 थोड़ा सा लूज हो जाता है, कई बार कुछ भी हो सकता है, और पता चला 0 पे नहीं है, 0 से थोड़ा इधर है, यानी ऑलरेडी रीडिंग है, करंट अभी पास भी नहीं हुआ है, लेकिन नीडल थोड़ा शिफ्टेड है, यानी ऑलरेडी एक रीडिंग आ। अब इसमें तो करंट का रीडिंग 0 आना चाहिए था, अभी तो मैंने सर्किट में डाला ही नहीं है, लेकिन वही है ना, नीडल बार बार इधर उधर होते होते थोड़ा सा एरर क्रीप इन हो गया, एंड इट इज नॉट एट 0, so then it is already having a reading, whereas actually there is no current, so that will be called as zero error. तो इस तरीके से कई सारे एरर्स है which can happen, I mean, and once these errors happen, and then those values are used for calculating further quantities. जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सपोज तुमने क्या किया, तुमने वोल्टेज मेजर किया एक इंस्ट्रूमेंट से, उसमें मान लो कुछ एरर्स है, तुमने करंट मेजर किया एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से एमीटर से, उसमें भी एरर है मान लो। अब तुम वोल्टेज और करंट को यूज करके क्या निकालोगे, शायद रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो वी में अगर एरर है, अगर आई में एरर है, इन दैट केस रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में भी एरर आएगी, सो दैट इज एरर ड्यू टू कैलकुलेशंस। तो मैंने बोला ना, मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। तो क्योंकि वोल्टेज में एरर हम लोग कर चुके हैं और करंट में भी एरर कर चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे। सो दैट इज आइडिया ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कैलकुलेशन बेस्ड एरर्स, ठीक है। अच्छा, इसके मतलब क्या हुआ, देखो कि वोल्टेज मैंने वैल्यू निकाला, करंट का मैंने वैल्यू निकाला एक्सपेरिमेंट्स, और उसको यूज करके कैलकुलेशन के बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस निकाला, उसमें आया। सो यानी एरर के मतलब दो चीजों के एरर की वजह से तीसरे चीज में एरर आ गया, यानी प्रोपगेट किया, इसलिए हम लोग एक और चीज हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, when and when some error happens because of calculations based on quantities having errors. तो प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है ना, जब कुछ एरर हो जाता है because of calculations based on quantities having errors, that is what is called as propagation of error. तो इसी के ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। वेल आदित्य has just told कि कुछ डिस्कनेक्शन से हो गया, तो कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट टू? फर्स्ट टू बहुत आसान है, ह्यूमन एरर मतलब अब मैं ह्यूमन बीइंग हूं, तो मैं अगर कोई मेजरमेंट करूंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो मेरे से कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, दैट इज ह्यूमन एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर, अब देखो एक्सपेरिमेंटल जब सेटअप बनाते हैं तो हर चीज 100% परफेक्ट तो होता नहीं है, तो उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में भी हो सकता है कुछ एरर आ जाए। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा था, इज दैट सपोज किसी वजह से एक सर्किट हीट हो जाता है, अगर सर्किट का हीटिंग हो जाएगा, इन दैट केस रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यानी जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग रिजल्ट आएगा। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द हीटिंग इन द एक्सपेरिमेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो यानी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में क्या हो गया, एरर आ गया। तो दैट्स द आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। जीरो एरर का मतलब क्या होता है ना, देखो कायदे से जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो रीडिंग क्या आना चाहिए, जीरो। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज करते 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 नीडल ऐसे जाता है वापस आते से, तो इसमें कई बार जो है नीडल जीरो पे नहीं रहता है, इवन व्हेन द करंट इज जीरो या व्हेन द वोल्टेज इज जीरो, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो एरर। यानी जिस समय रीडिंग जीरो होना चाहिए तो उस समय भी कुछ रीडिंग दिखा रहा है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज जीरो एरर। तो इसी तरीके से एरर्स होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे एरर का प्रोपगेशन, ठीक है। बट यू नो व्हाट दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, एंड that is you might say कि एरर मतलब गलती से हुआ होगा। The answer is no. Now this is important. Error means something that in general would happen even when you do things very carefully. तो ऐसे मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुम एक लेजी वर्कर हो, तुम एक्सपेरिमेंट ढंग से नहीं करते हो और इस वजह से एरर आ गया। नो, the presumption in error is that the experiment is being done well. अच्छे से किया जा रहा है, उसके बाद भी एरर का स्कोप है। So when I say error, it is actually scope of error that we are talking about. ठीक है। अच्छा, now you might say scope हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना?
तो चलो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इज दैट तेरा सिंपल सा चीज है। सपोज अगर मैं एक मीटर स्केल लेता हूं तो उसमें हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर कोई मेजरमेंट करना होगा तो बिल्कुल एकदम वर्टिकली ऊपर से ऐसे देखना चाहिए, उससे क्या होता है रीडिंग एकदम सटीक आता है। लेकिन देखो आफ्टर ऑल एज आई सेड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो कई बार क्या होता है एकदम बिल्कुल वर्टिकल ना होके हो सकता है कि थोड़ा सा इस साइड से देख रहे हो तो हल्का सा इधर वाला रीडिंग या हल्का सा उधर वाला रीडिंग अक्सर हो जाता है। यानी इन जनरल फॉर अ मेजरमेंट we write error as the least count of the instrument। उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसी को जनरली हम लोग एरर बोलते हैं। क्योंकि एज आई सेड हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत एरर कर लो, ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज 2 सेंटीमीटर है जो कि वर्टिकली देखने से 2 सेंटीमीटर लगता है और एकदम यहां से देख रहे हो तो एकदम 2.5 सेंटीमीटर लग रहा है। ऐसे कोई एरर थोड़ी करता, कोई जानबूझ के एरर थोड़ी करता है ना, जानबूझ के एरर नहीं करता, हो जाता। दैट्स व्हाई आई सेड लेकिन कितना एरर होगा ना उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज अवेलेबल इन अ इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है एज आई सेड सो वेयर लीस्ट काउंट is the smallest measurement in the instrument। तो जनरली हम लोग एरर बोलते उसी को बोलते क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अच्छे से कर, फिर भी एक डिजिट ऊपर एक डिजिट नीचे तो फिर भी हो सकता है ना। तो जनरली द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी कैसे किया जाता है? एनी क्वांटिटी क्यू मतलब कोई चार्ज मत समझ, क्यू इज एनी क्वांटिटी इज रिटन एज क्यू नॉट प्लस माइनस डेल्टा। ये जो क्यू नॉट है दैट इज कॉल्ड एज द बेस वैल्यू और डेल्टा क्यू इज कॉल्ड एज एरर। नाउ यू माइट से प्लस माइनस का मतलब, एक चीज बताओ, क्या तुम वर्टिकल के जगह थोड़ा सा दाएं बाएं देखते हो तो क्या हमेशा दाएं से ही देखोगे? क्या कभी बाएं से नहीं देखोगे बाई चांस? तो एरर क्या हमेशा प्लस ही होगा, माइनस नहीं हो सकता है? तो देखो उतना ही एरर जो लीस्ट काउंट है वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। इनफैक्ट एक चीज बताओ, अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं एरर कर रहा हूँ तब तो मैं एरर करता ही नहीं, है ना। ये तो हो जाता है जैसे क्योंकि ह्यूमन बींग्स है हम लोग, एकदम वर्टिकल ना होके थोड़ा सा इधर हो गया तो इतना कई बार पता ही नहीं चलता कि मैं थोड़ा सा साइड से देख रहा हूँ और उस चक्कर में एक मेजरमेंट आगे वाला देख लिया या एक मेजरमेंट पीछे वाला देख लिया, ये सब होते रहता है। So therefore we use plus minus delta q। तो delta q is the error. This is basically the quantity। जैसे मान लो तुम एक चीज मेजर कर रहे हो एज 42 सेंटीमीटर और मान लो उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे? 42 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, वो तो अपने आप डिसाइड कर लेते। तो दैट इज प्लस माइनस जरूर लिखेंगे। दैट इज द जनरल स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग और रिप्रेजेंटिंग एनी क्वांटिटी। सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। ओके, नाउ सी सर सर इधर क्यू क्या है? सर एक्चुअली एक बच्चा वेटिंग रूम में है और वो कह रहा है कि मेरे को अलाउ कर दो। सौरभ है उसका नाम। सौरभ, सौरभ को शायद मैंने अलाउ कर दी। तो सौरभ कुमार, हाँ सौरभ कुमार को एंट्री दे दी, ही इज ऑलरेडी देयर। तो थोड़ी देर पहले था, मैंने भी देखा। सर इसमें क्यू क्या है? हाँ बेटे, सर क्यू क्या है यहाँ पे? हाँ मैंने बोला ना, क्यू इज एनी क्वांटिटी। क्यू कैन बी लेंथ, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी करंट, इट कैन बी वोल्टेज, इट कैन बी वॉल्यूम, इट कैन बी मास, जो मर्जी क्वांटिटी हो। एक जनरल क्वांटिटी, क्वांटिटी के शॉर्ट में मैंने क्यू यूज। अगर मैं यहाँ पे एम लिखता तो यानी मास हो गया, फिर एम नॉट इज द बेस वैल्यू जो तुम मेजर कर रहे हो और उसके अंदर एरर हो सकता है 1 ग्राम 2 ग्राम, जो भी एरर है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इट विल बी फॉर मास। सर एक बार बता दो कि प्लस माइनस क्यों लिखा है? देखो प्लस माइनस मैंने क्या बोला कि देखो गलती होता है एरर के मेजरमेंट में। कैसे होता है कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब भी तुम स्केल से कोई रीडिंग लेते हो तो बिल्कुल सीधा देखना चाहिए,
लेकिन सीधा देखने के लिए क्या हम प्रोटेक्टर लगा के देखते हैं? क्या हम नहीं देखते हैं? हम अपने हिसाब से एक आंख बंद करके मोटा मोटा ऐसे करके देख लेते हैं। सो दैट्स व्हाट वी जनरली डू। अब उस चक्कर में क्या होता है, कई बार एकदम सीधा ना होकर हल्का सा इधर या हल्का सा इधर हो ही जाता है। आई मीन आफ्टर ऑल एज आई सेड यू आर ह्यूमन बीइंग्स। तो यानी एकदम वही रीडिंग ना देख के हो सकता है कि थोड़ा एक रीडिंग प्लस में देख लिया तुमने, एक रीडिंग माइनस में देख लिया, ये तो होता रहता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इन जनरल व्हाट वी से बाय एरर और व्हाट वी मीन बाय एरर इज जनरली द लीस्ट काउंट, यानी उसमें से जो सबसे कम वाला हिसाब, जो सबसे छोटा मेजरमेंट अवेलेबल होता है एक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक नॉर्मल जो मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है बता सकते हो? एक नॉर्मल मीटर स्केल में लीस्ट काउंट क्या होता है? 0. 1 mm. अनुभव यू आर सेइंग 0.1 मिलीमीटर, नन, इट इज 1 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बोलो तो 0.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बोला है। नाउ अनुभव हैज आल्सो चेंज्ड इट, रोहानी हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर, दैट इज 1 मिलीमीटर। यानी अगर तुम मीटर स्केल से मान लो तुम 32 सेंटीमीटर मेजर करते हो, तो इन दैट केस हम पता है कैसे लिखेंगे? द लेंथ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। और अगर तुम बोलोगे नहीं मैं तो सेम यूनिट में लिखना चाहता हूं, ओके नो प्रॉब्लम, कैन राइट दिस आल्सो 32 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है ना? ओके, नाउ दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एरर। तो तभी मैंने बोला ये एरर, इसको हम लोग बेस वैल्यू बोलते हैं, और इस ये दिस इज एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, करंट हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। अच्छा देखो एज आई सेड कि एरर तो चलो जो हो गया है ना, एरर तो चलो जो हो गया, नो प्रॉब्लम। अब सवाल ये कि एरर कितना ज्यादा है ये कैसे मुझे पता चलेगा, है ना? इट इज सिमिलर टू आस्किंग ए क्वेश्चन लाइक दिस कि सपोज, एक चीज जरा सोचो, सपोज क्या होता है, सोचो जरा, सपोज क्या होता है, मैंने क्या किया, मैंने अपने जो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन है मान लो, या कोई क्वांटिटी है मान लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, मेजर किया है मान लो 5 सेंटीमीटर और उसमें 1 मिलीमीटर का एरर होता है। कोई और मेजरमेंट है जिसमें सिर्फ 2 सेंटीमीटर और उसमें 1 मिलीमीटर एरर। अब कायदे से तो एरर दोनों में 1 मिलीमीटर है, लेकिन क्या तुमको लगता है कि एरर का प्रोपोर्शन दोनों में सही है, सेम है? नहीं है ना, है ना? इट इज समथिंग लाइक, मान लो किसी ने मेहनत किया और उसका मार्क्स बढ़ गया 2 नंबर, और किसी और ने मेहनत किया और मार्क्स बढ़ गया 5 नंबर। तो ध्यान से सुनना, किसी ने मेहनत किया और उसका मार्क्स 2 नंबर बढ़ गया, और किसी और ने भी मेहनत किया और उसका मार्क्स बढ़ गया सपोज 5 नंबर। तो क्या जरूरी है कि 5 नंबर वाले का ज्यादा क्रेडिट? नॉट नेसेसरी। मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज पिछले बार मुझे मिला था 100 में 80, ध्यान से सुनना, 100 में 80, और अब मिला है 100 में 85, तो 5 मार्क्स बढ़ गए, ओके। किसी और का पिछले बार टेस्ट में 10 में 6 था, ध्यान से सुनो, 10 में 6 था, उसका 2 नंबर बढ़ के अब हो गया 10 में 8। अब बताओ, सुनने में तो 2 मार्क्स कम होता है, 5 मार्क्स ज्यादा होता है। हो सकता है तुम बोलोगे 5 मार्क्स वाले का ज्यादा क्रेडिट, लेकिन उसका 100 में से 80 से 85 हुआ है, तो कहने के लिए 5 का इंक्रीमेंट है, लेकिन है 100 के ऊपर। और इसका 10 में से पिछले बार 6 था, अब 6 से 2 बढ़ के 8 हो गया। आई थिंक प्रोपोर्शनली अगर देखोगे इसका जंप ज्यादा है, यानी बेटर परफॉर्मेंस इसने किया है जो 2 नंबर वाले। So therefore, only error is not what we are looking at. We are also looking at how big that error is. उसको मेजर करने के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, and that is called as relative error, or sometimes also called as fractional error. Fractional error वो क्या होता है ना, डेल्टा क्यू बाय क्यू नॉट, एरर अपॉन द क्वांटिटी। कई बार इसी को परसेंटेज एरर में भी डिफाइन करते हैं। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर हो गया इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू नॉट इनटू 100। तो सिंपल, जैसे इसी में देखो, इसी में अगर देखोगे रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या हो गया? 0.1 बाय 30। तुम बोलोगे इसका परसेंटेज एरर,
तो ठीक है, परसेंटेज एरर हो जाएगा 0.1/32 into 100। तो एरर तुमको देता है कि एरर का क्वांटिटी कितना है। रिलेटिव एरर तुमको ये बताता है कि वो एरर क्वांटिटी के हिसाब से कितना ज्यादा है या कितना कम। सो दैट इज द आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। ठीक है, चलो, सो वी हैव ऑलरेडी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू एरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, रिलेटिव एरर, है ना, and percentage error also. So I hope you are copying them side by side. Let's now proceed. ठीक है ना? Suppose I say that there is a quantity length which is 20 plus minus 0.1 centimeter, and let's say breadth which is 10 plus minus 0.2 centimeter, and I am interested in finding out L plus B. L plus B. तो क्या लिखना चाहिए? ठीक है, यानी अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन ऑफ एरर। कि अगर मान लो मैंने कुछ क्वांटिटीज मेजर किया, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, चाहे कुछ भी हो, और उसको यूज करके फर्दर कुछ और क्वांटिटी निकालना चाहा, तो इन दैट केस जो फर्दर वाला क्वांटिटी है, जो नया वाला क्वांटिटी है, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, क्योंकि तुमने जो सोर्स क्वांटिटीज है या पहले का क्वांटिटी है उसमें भी एरर रखा है, एरर है। तो देयरफॉर इसके बेसिस पे जो कैलकुलेशंस करोगे आगे, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएंगे। So that is the idea behind propagation of error. Propagation of error. First case is addition. तो L plus B में क्या लिखेंगे? 20 plus 10 30, और इसमें लिख देंगे 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी what is the basic rule? तो ये रूल ये हो गया that in case of addition of quantities, क्या होता है? Error also gets added. ठीक है, अगर तुम क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो दैट केस एरर भी ऐड। हाँ बोलो, क्या बोलो? सर अगर लेंथ में प्लस 0.1 होता और ब्रेड्थ में माइनस 0.2 होता तो भी हमने ऐड कर दिया। नहीं समझे। देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लेंथ में प्लस होगा या माइनस होगा ये भी नहीं पता, ब्रेड्थ में प्लस होगा माइनस होगा ये भी नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो लेंथ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, ब्रेड्थ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, तो जब लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे तो जो मैक्सिमम एरर निकलेगा वो आएगा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट एरर का मतलब एरर नहीं होता, एरर का मतलब होता है स्कोप ऑफ एरर, मैक्सिमम स्कोप ऑफ एरर। तो कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है अगर इन दोनों को ऐड करोगे? मैक्सिमम एरर जो हो सकता है वो है दोनों का सम ऑफ द एरर्स, एंड दैट इज 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? दैट्स द पॉइंट। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि एरर पता थोड़ी चलता, क्या तुमने ऐसे ना मेजर करके ऐसे मेजर किया, अगर ये तुमको पता होता तो तुम करते ही नहीं है। क्या तुम ऐसे की जगह गलती से ऐसे मेजर कर रहे हो, थोड़ा सा तिरछा, अगर ये तुमको पता होता तुम करते ही नहीं। तुम तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो कि भाई मुझे सीधा देखना चाहिए। अब वो सीधा तो देखो ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग सीधे की जगह हल्का से इधर हो गए तो पता ही नहीं चला, हमने दूसरा रीडिंग ले लिया, उसके बगल वाला या इधर वाला बगल वाला, तो ये एरर चलेगा। तो जब इनके में एरर आ गया, तो जब इनको यूज करके कुछ और फर्दर कैलकुलेशन करूंगा तो उसमें उस एरर का असर होगा। तो पॉइंट इज दैट क्या असर होगा? एरर का असर ये हुआ कि दोनों का एरर को ऐड। ठीक है ना? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंसिस्ट। ठीक है, तो ये चीज आ। अब ये सेंटेंस आई होप कि नोट कर लिए होंगे। तो अगर ये सेंटेंस नोट कर चुके हो तो सर ये एरर 0.3 होगा या उससे कम ज्यादा भी हो सकता है? देखो, ये तो डिपेंड करेगा तुमने इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया। अगर तुम नॉर्मल स्केल यूज कर रहे हो, नॉर्मल स्केल जो हम लोगों के घर में होता है, मीटर स्केल, या जो पेंसिल बॉक्स में जो स्केल होता है छोटा सा 6 इंच वाला, या कईयों के पास वुडन स्केल होगा या स्टील वाला एक फीट वाला, उसमें देखा होगा कि 1 मिलीमीटर का ही मेजरमेंट होता है सबसे छोटा। ठीक है, पर देन यू माइट से आपने तो 0.2 भी लिखा है।
देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकते, 0.2 का भी हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज एक काम करो, 1 सेंटीमीटर के अंदर देखा होगा 10 निशान होता है, मतलब टोटल 10 डिविजन्स होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 सेंटीमीटर में जनरली ऐसे होता है, देखो 1 2 3 4 फिर 5, ये हो गया, फिर 6 7 8 9 10, जनरली ये होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको मिटा देता हूँ। मैं से क्यों मिटा रहा हूँ? भाई देखो इमेजिनेशन है, कुछ भी कर सकता हूँ। अब बताओ, अब तुमको बीच वाला निशान तो है ही नहीं, तो अब ये 0.1 थोड़ी होगा, अब ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर। तो अगर ऐसे स्केल में मेजर करोगे और अगर इसमें एरर होगा तो फिर 0.2 सेंटीमीटर का एरर हो जाएगा। भाई एक बार या तो इधर वाला रीडिंग ले लोगे या तो उधर वाला रीडिंग, तो एरर हो गया 0.2, तो ऐसे कुछ 0.2। नाउ यू माइट से ऐसे स्केल में मिटा हुआ थोड़ी रहता है। देखो क्या रहता है नहीं रहता, लेट्स लीव इट। अगर क्वेश्चन में बोल दिया 0.2 तो हम बोल देंगे 0.2। अब वो 0.2 कैसे आया, कोई ऐसे अजीबोगरीब काम क्यों करा या कैसे करा, उससे हमें क्या लेना था। क्वेश्चन में कह दिया ना 0.2 का एरर है, लेट्स एक्सेप्ट इट। इन जनरल होता नहीं, इन जनरल देखना यहाँ पे 0.1 ही हो इन जनरल, बट वही बात है ना, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकते हैं, तो हमें तो मानना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। सो दैट्स अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ L प्लस B। तो यानी इन दिस केस में ना एक छोटा सा कैलकुलेशन और भी करना चाहता हूँ, दैट आई वांट टू डू सम कैलकुलेशन दैट इज बेस वैल्यू एरर, relative error, percentage error and representation। सपोज मैं करना चाहता हूं L का, B का और L प्लस B का, तो क्या क्या होगा। तो L का क्या है, बेस वैल्यू कितना है ना 20, ये हो गया 10। L प्लस B का क्या होगा 30। एरर बोलते कितना होगा 0.1, इसका हो गया 0.2। रिलेटिव एरर क्या होगा 0.1 by 20, तो 0.1 upon 20, इसका हो गया 0.2 by 10। इसका परसेंटेज एरर क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 0.5, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 2%। और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ना, वही रिप्रेजेंटेशन दिया ही है, इसी को कॉपी करना है। 20 प्लस माइनस 0.1, 10 प्लस माइनस 0.2। अब इसका क्या होगा, एरर ऐड होगा यानी 0.3। रिलेटिव एरर क्या होगा 0.3 by 30। परसेंटेज एरर क्या होगा ना, ये तो अगर इसको करोगे तो 1/100 आएगा, तो परसेंटेज एरर में कितना आ गया 1%। और रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस 0.3। So this is the complete understanding of the way of representing errors in quantities। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट, एक बार अच्छे से देख। आई होप इट इज लिटिल कंफर्टेबल। एक बार अच्छे से देख लो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो queries, so I'm going ahead now। सब्ट्रैक्शन में ये L माइनस B हो जाएगा, है ना, ये तो एडिशन है। अब मैं सेकेंड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, सजेस्ट टू मी, यहाँ पे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर में बताना। अगर प्रियंका has given immediate answer, I'm not reading it out deliberately, but एक immediate answer दिए है। प्लीज आंसर इन सेंटीमीटर। प्रियंका ने दे दिया, आरव, आदित्य, मुकुंद, आदित्य भाटिया, शिखर,
देवेद, प्रियंक, अनुभव, ओके। दो टाइप का आंसर आ रहा है, एक 0.1 वाले भी आ रहे हैं और एक 0.3 वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। एक लॉजिक देखो जरा। सपोज अगर ये 0.1 होता, लेट्स से, मैं अभी क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं वापस आ जाऊंगा अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, एक सेकंड के लिए कर। और अगर तुमको लगता है ऐसे, अगर बाई चांस तुमको ऐसे लगता है कि क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जैसे क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो गया, एरर भी कर दो सब्ट्रैक्ट, ऐसा लग सकता है। जरा देखो इंटरेस्टिंगली क्या होगा। अगर मान लो दोनों में सेम एरर होता है और अगर सब्ट्रैक्शन में तुम कहते हो कि एरर भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तब तो एरर फ्री क्वांटिटी हो गया, एरर फ्री क्वांटिटी हो गया। ये तो नहीं हो सकता। जब एक क्वांटिटी में एरर है और दूसरे क्वांटिटी में भी एरर है, तो उसके बेसिस पे कुछ भी कैलकुलेट करोगे तो एरर तो आना ही, एरर तो आना। ठीक है, सो देयरफॉर ये लॉजिक तो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दो और 0 होगा। इंटरेस्टिंगली इसलिए भी ऐड होगा। बाय द वे मैंने 0.2 लिखा था पहले, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, यानी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज, एरर गेट्स एडेड। ठीक है ना? नहीं, ये क्या लॉजिक है? जब क्वांटिटीज ऐड हो रहा है तो एरर ऐड होता है, समझ में आता है। जब क्वांटिटीज माइनस में आ रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एरर कैसे ऐड हो गया, है ना? ओके, नाउ दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छे से इसका लॉजिक सुनो। देखो मैंने पहले ही बोला है इज दैट, इसको मिटाऊंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला इज दैट कि जो भी एरर बनता है ना, ये कोई खुशी खुशी नहीं बनता, ये हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स है, एक्सपेरिमेंट है, कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है। माय ओनली कंसर्न इज दैट मुझे इस बात पे नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैं एरर करता भी हूं तो मैक्सिमम कितना एरर मैं करता हूं या कितना कर सकता हूं। दैट इज व्हाट माय फोकस इज ऑन। सो माय फोकस इज बेसिकली ऑन कि अगर मैं एरर करता हूं तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोप ऑफ एरर, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग। ठीक है, तो एक चीज जरा सोचो, जब तुम माइनस कर रहे हो तो ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ का हाईएस्ट वैल्यू माइनस यहाँ का लोएस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर, तो यहाँ का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 20.1। अगर एरर का 0.1 होता है लेट्स से, तो 20.1, और इसका लोएस्ट वैल्यू क्या होगा 9.8, 10 माइनस 0.2, तो 20.1 माइनस 9.8 जब करोगे तो 10.3 आया ना, तो बेस वैल्यू तो 10 है, तो 10.3 का मतलब क्या हुआ, फिर 0.3 का एरर हुआ ना। से नहीं, लेकिन 0.3 का एरर तो तब होगा ना जब उसका हाईएस्ट और इसका लोएस्ट लेते हो, उसका हाईएस्ट और इसका लोएस्ट लेते हो। नाउ सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एरर का मतलब एरर नहीं होता है। एरर का मतलब होता है कि मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी या स्कोप ऑफ एरर है। तो मैक्सिमम एरर तो तभी होगा ना जब इसका मैं हाईएस्ट वैल्यू ले लूं, इसका मैं लोएस्ट वैल्यू ले लूं और मैं माइनस करके कैलकुलेशन करूंगा, उसी में सबसे ज्यादा एरर होगा। और हम उसी सबसे ज्यादा वाले एरर का हिसाब रखना चाहते हैं, बिकॉज एरर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ एरर, दैट इज समथिंग दैट यू टू ऑब्जर्व। तो देयरफॉर अगर मान लो L 20.1 हुआ और B अगर 9.8 हुआ, अगर दोनों को माइनस करो तो आंसर आएगा 10.3। 10 तो चलो बेस वैल्यू हो गया, वो 0.3 कहां से आया, वही तो एरर। इसलिए अगर मान लो तुम दो क्वांटिटीज को माइनस करते हो, इन दैट केस क्या होता है, इन दोनों का एरर ऐड हो जाता है। तो देयरफॉर इस केस में भी इंटरेस्टिंगली एरर में ऐड, यानी अब तो मैं कंबाइन कर सकता हूं कि अगर दो या इवन मोर देन भी अगर हो, तो अगर क्वांटिटीज है मेरे पास और अगर मुझे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इन दैट केस बेस वैल्यू तो चलो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो तो करोगे, साथ में जो एरर होगा वो दोनों केस में
ऐड होगा। यानी मैं इसको कल्मिनेट करूंगा डिस्कशन को इस तरीके से, इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एरर्स आर एडेड। देखो, in both addition and subtraction errors are added। ठीक है, तो अभी हमने प्लस का चार्ट बनाया था, अब मैं माइनस का चार्ट बनाऊंगा। तो ये L माइनस बी हो गया, ये 10 हो गया, ये तो 0.3 है, ये 0.3 बाई 10 हो गया, है ना। यानी क्या हो गया, ये 3%, और ये 30 हो जाएगा। तो ये सेम चार्ट मैंने बनाया, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन के लिए बना दिया L माइनस बी। देखो फाइन। अब क्विक लुक करें, तो ये हो गया प्लस और माइनस के केस में एरर को कैसे हैंडल करना है उसका एग्जाम्पल। ओके, थर्ड केस एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस इज मोर क्रिटिकल, इसको हम एग्जांपल से नहीं करें, इसको जनरलाइज करें। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड केस एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन। और इसको ना थोड़ा जनरलाइज करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं करेंगे, अब हम जनरलाइज। ठीक, सो L is suppose equal to L naught plus minus delta L, B is equal to B naught plus minus delta। अब सेंटीमीटर मीटर छोड़ दो, अब तो एल्जेब्रिकल हो गया। अगर मुझे L इंटू बी निकालना है तो लेट्स से द प्रोडक्ट, अब तो प्रोडक्ट का चल रहा है, इसके टोटली अलग होगा। प्रोडक्ट में क्या होगा, देखो L इंटू बी अगर कैलकुलेट करो तो क्या है, L नॉट प्लस माइनस डेल्टा L इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, इज इक्वल टू L नॉट बी नॉट प्लस डेल्टा L इंटू बी नॉट प्लस डेल्टा बी इंटू L नॉट प्लस डेल्टा L इंटू डेल्टा। एक्चुअली पता क्या होता है, देखो पलक has asked a question in the meanwhile and that is errors को subtract करने का यूज क्या है। कई बार subtract भी करना पड़ता है ना। आई मीन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एरर, सॉरी ऐसा तो नहीं है ना कि फिजिक्स में हम लोग सिर्फ ऐड ही करते हैं, फिजिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं, हम लोग डिवाइड भी करते हैं, पावर भी रेज करते हैं, हम ऐड भी करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग चीजों का जरूरत है, ठीक है ना। सो यू नेवर, चलो खैर ये तो बेस क्वांटिटी हो गया। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, this delta L is supposed to be very small and this delta B is supposed to be very small. जब very small into very small होता है ना, so that becomes extremely small. So therefore we are going to neglect this. So this part is neglected. तो ये बन जाएगा, ये क्या बनेगा, L naught B naught plus delta L into B naught plus delta B into L naught plus delta L into delta B. And that is neglected. तो इसको हटा, यानी अब जरा समझो, ये बन गया फिर बेस क्वांटिटी and this now becomes the error। इस पे प्लस माइनस लगा दो, ऐसे करके ब्रैकेट में डाल, ठीक है। तो ये एरर आ गया, दैट इज डेल्टा L into B naught plus delta B into L। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं रिलेटिव एरर भी निकाल, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, एरर अपॉन बेस क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये तो एरर है, डेल्टा L into B naught plus delta B into L naught by बेस क्वांटिटी L naught B naught। ये क्या होगा ना, जब इसको इससे डिवाइड करो तो B naught खत्म हो जाएगा, डेल्टा L by L naught। Mind you, this is the relative error of product।
ठीक है, रिलेटिव एरर निकाल रहा हूं। तो डेल्टा एल बाय एल नॉट प्लस डेल्टा बी बाय बी। नाउ isn't this relative error of L naught and isn't it the relative error of B naught? यानी L का एरर relative error, ये B का relative, so that is equal to sum of relative errors of each quantity. So therefore relative error of the product, so relative error of the product of the multiplication is equal to sum of relative error. यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ था, the error is equal to sum of individual errors, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, relative error of the multiplication is equal to sum of relative error of the individual quantities. That's what the difference is. ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं उस एग्जांपल पे चलता हूं। अब मैं वो एग्जांपल जो दिया था उसी को ले लेता हूं। तो लेट अस से L is equal to 20 plus minus 0.1, B is equal to 10 plus minus 0.2, जो क्वांटिटी था। तो अब मैं प्रोडक्ट का जानना चाहता हूं, LB का बेस क्वांटिटी, एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और लास्ट में, ये तो आई होप कि इसका डेरिवेशन कॉपी कर चुके होंगे, तो लास्ट में क्या होगा ना, रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको मिटा रहा हूं, लास्ट में हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस इज पहले काम करो, मैं इसको रिपीट ही कर दूं। एल बी का पहले देख लेते हैं एक बार, और फिर एल बी, वैसे रिपीट हो जाएगा क्योंकि एल और बी का तो हमने पहले भी बनाया था, पर मिटा दिया ना, इसलिए सामने रहेगा तो अच्छा लगता है, देख के पता चलता है क्या। Go ahead. एल बी का तुम लोग बनाओ। एल हो गया 20.1 by 20, है ना, इसको 100 करेंगे, हो जाएगा 0.5%, और रिप्रेजेंटेशन तो है ही, ऑलरेडी पता ही है, 20 प्लस माइनस 0.1, जस्ट कॉपी करना। बी का हो गया 10, 0.2, 0.2 by 10, है ना, 2, 10 प्लस माइनस 0.2। एल बी प्रोडक्ट का तो 200 ही होगा, बेस क्वांटिटी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। एरर में क्या होगा, एरर में एरर पहले नहीं निकले, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में एरर नहीं निकले, पहले रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितना है, 0.1 by 20 प्लस 0.2 by 10, यानी ये तो हो गया 1 by 200, ये हो गया 2 by 100, यानी 4 by 200। तो 1 by 200 प्लस 4 by 200 यानी 5 by 200, है ना, यानी ये हो जाएगा 1 by 200 ये वाला, प्लस एरर 5 होगा इसमें। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, 4 by 200 यानी इक्वल टू 5 by 200 यानी 1 by 40। तो परसेंटेज एरर क्या होता है ना, इसी को वो कर देगा, यानी 2.5। अब एरर आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब बेस क्वांटिटी, तो रिलेटिव एरर आ चुका है कितना, 1 by 40, यानी
1 by 40 is equal to error by Q naught. Q naught means base quantity. Base quantity क्या है? 200 है ना? So you get 200. Therefore error आ गया 200 by 40 यानी equal to 5. So that's the error, I mean 5. यानी अब हम जब रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 200 plus minus 5. अब देख लो अच्छे से, ठीक है? 200 plus minus 5. प्लीज अब so that was about your way of finding out error in case of addition, subtraction, multiplication. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा हटके में, ये तो ऑलमोस्ट मैंने ही किया आधा आधा, तुम लोगों को थोड़ा मौका कम दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, आई वाज इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया, तो मुझे लगा कि मैं कर देता हूँ। अब जो सीखा है तुमने इसके बेसिस पे अभी तक, अब इसके बेसिस पे कंप्लीट चार्ट बनाना। मैं ऑलमोस्ट रिपीट क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन अलग नहीं दे रहा, ठीक है ना? सो L इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0.1 and B is equal to 10 plus minus 0.1 और ये 0.2, ठीक है? तो अब पूरा चार्ट कंप्लीट करोगे, L B, L plus B, L minus B and L, सब कुछ। अब फिर जब चार्ट हो जाएगा तो मुझे सेंड कर, इट शुड बी डन वेरी फास्ट। अब तो मेथड समझ में आ चुका है, तो क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी बेसिकली, फिर एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और है रिप्रेजेंटेशन। L B, L plus B, L minus B and L B, पूरा चार्ट बनो अच्छे से। इससे क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या। चलो गो अहेड। Pratham is also sent. Pratham is also sent. Arnav Rajvanshi has also now sent. Aditya also. Aditya Bhatia. चलो ठीक है, गुड जॉब। ओके, मैं फटाफट फिलअप करता हूँ फिर। 40, 10, L plus B is 50, is 30, and this is 400. एरर तो इसका दिया ही है 0.2, इसका 0.1, एडिशन में ऐड हो जाएगा 0.3, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होगा 0.3। रिलेटिव एरर क्या होगा, 0.2 by 40, ये 0.1 by 10, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.4 by 40, जानबूझ के, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए। जो L plus B का जो रिलेटिव एरर होगा 0.3 by 50, और इसका होगा 0.3 by 30। परसेंटेज एरर इंटू 100 है ना, एक 10 खत्म हो जाएगा तो लाइक है ना, यानी 20 by 40 दैट इज 0.5। इसका भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1%, है ना, और ये हो गया 0.3 by 50, दैट इज लाइक 0.6। मैं 100 से करता हूँ, और ये तो खैर 1 by 100 है, यानी 1%। ओके, परसेंटेज एरर। रिप्रेजेंटेशन 40 प्लस पॉइंट प्लस माइनस 0.2, ये तो ऑलरेडी कर रखा है। 10 प्लस माइनस 0.1, 50 प्लस माइनस 0.3 and 30 plus minus 0.3 is 400 or
इसमें रिलेटिव एरर पहले निकलेगा, दोनों को ऐड कर L प्लस B वाला, तो 0.2/40 प्लस 0.4/40 दैट इज 0.6/40। और हमें पता है कि रिलेटिव एरर इनटू क्वांटिटीज एरर, वी नो दैट रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर बाय बेस क्वांटिटी। एरर क्या होगा? क्वांटिटी इनटू रिलेटिव एरर, बेस क्वांटिटी इनटू रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर है, ये बेस क्वांटिटी है, तो इनटू करोगे क्या आएगा? 6 है। और परसेंटेज एरर क्या होगा? तो इनटू 100 करोगे तो यानी 60/40 यानी 1.5%। और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 400 प्लस माइनस 6। ठीक है, वो देख लो। तो दिस इज बेसिकली द एंटायर चार्ट। मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूँ, अगर चार्ट में कुछ देखना है तो वो देख। ठीक है, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय।